Hello, welcome Deepak. Welcome Aradhya. Good evening, sir. Good evening. Bless you. It is very good that you are punctual. Thank you so much, sir. Sir, actually, I was trying since 8 p.m. because just you send us the link, so I feel that their class is starting from 8 p.m. No, that was for tomorrow, 8 a.m. But that has been 8 cancelled a.m. because the speaker Bharat Nagia ji is not keeping well. Oh, 8 a.m. Tomorrow's 8 a.m. session has been suspended. We will have it on Friday most probably. He is not well today. But this session we will have. गोरखपुर जहाँ हम रहते थे ना, अब वो शिफ्ट हो गया विजयनगर, आउटर साइड में थोड़ा बाईपास के पास. As you send the link इसलिए to तो भी Manish वो sir, वासद जी तो यहाँ he गोरखपुर sent में it. पता रहता He था. forwarded the बेटा message होना in the चाहिए group, कमिश्नर लेबर in कमिश्नर STS group, हो. and I just texted one message that if you wanna take any lecture, you can also take in 2 alternative days. Okay. And sir, I have decided that I will take my own lectures on Thursday and Saturday. As these 2 days I'm Yes, free. that's very good of you, Aradhya. Today we will identify some students who need more help. So you meet them on Thursday and Saturday. okay. So sir, can you please tell me the timing? Okay, what should be the timing of the class? I'll tell you, it will be most probably around 7 p.m. Okay. So we are Okay, sir. 5 of us now. Let's begin. I welcome everybody. This is the third session of CSVSEP, that is Cambridge School Volunteers Spoken English Teaching Program. I am Devesh Vijay and I will be talking about the issues in spoken English, why it is more difficult than learning any other language, and other introductory issues to the program. Now, some of us were there in last time also, but some are new, like Manish. So I'll just briefly tell about this program. Actually, as you know, on social media, etc., many of us can link up with our friends. अगर मैं पूरा अंग्रेजी में बोलूं तो ठीक है. अगर आपको कहीं भी इच्छा हो कि मैं मिक्स लैंग्वेज में बोलूं या हिंदी में बोलूं तो आप जरूर हैंड रेस करके मुझे बताइएगा. व्हाट डू यू प्रिफर? कोई भी बता सकते हैं क्या मैं अंग्रेजी में ही बोलूं या मिक्स करके बोलूं? Sir, I think this program is basically the initiative that the people who are difficult in I'll mute. I think some noise was there. Okay, Aradhya, I will speak in English, but you can always stop me wherever you wish. Let me mute the. Okay. If there is any background noise, please take care to mute yourself. But please keep the video on unless you are doing something which you don't want to show up on the Zoom session. Otherwise, please keep the video on. Now, there will be a 30-minute break. After 30 minutes, sorry, there will be a 5-minute break because
this session will end. It has a time limit, but we will be able to rejoin just by tapping the same link again. So after about 30 minutes, we'll have a few minutes break, but join back after tapping the link again. As we gathered from our last meet on Friday, most of you have some grasp on English already. So it seems that we can concentrate on improving our English speaking skills rather than learning basic English like grammar rules, etc. I hope that is all right. Raise your hand if you think this is okay. I can see that some people are from outside Delhi also, and some are from Muslim Basti called Basti Mir Dar at different working class localities of Delhi. And I was told that 1 or 2 people will be joining from a village close to Delhi also. So I'm very happy that it's a very diverse group. Now, as I said, we will be targeting intermediate learning rather than basic English. By intermediate, I mean you are familiar with basic English words, their meanings, but you find fluent speaking difficult. So that will be our main target, and also the syntax, in what order, what kind of subject, predicate, parts of speech, etc. should come in a sentence, how to introduce yourself. These kinds of things we'll be learning, focusing especially on. As you all know, perhaps, that there are 5 broad aspects of any language: the word meanings, spelling and pronunciations, grammar, accent and punctuation. Accent आप लोग समझते हैं, लहजा. और एक और लास्ट में एक एस्पेक्ट होता है idiom and proverbs. Every language, according to its context, social context, develops certain specific usages which are not literally given. यानी कि मुहावरे, इनको अंग्रेजी में proverbs कहते हैं, idioms यानी vernacular usages. जैसे समझ लो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. White elephant. When we say white elephant, with reference to some costly burden, हम लोग उसका literal meaning नहीं रेफर कर रहे हैं. उसका क्या मीनिंग है, आप में से कोई बता सकते हैं? जब हम कहते हैं कि ये तो हमारे देश के लिए एक white elephant है, this is sort of white elephant for our country, तो उसका क्या मीनिंग है? वहाँ सफेद हाथी तो नहीं है, उसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग है? उसका मीनिंग है कि वो बहुत महंगा पड़ रहा है देश को. जैसे हाथी को खिलाना, उसको रखना बहुत कॉस्टली होता है उसके कीपर के लिए, तो वाइट एलिफेंट और भी ज्यादा कॉस्टली होता है, उसको बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता है. तो दिस इज एन इडियोमैटिक यूजेज. इडियम्स का यही मतलब होता है कि जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से ही उसका मीनिंग क्लियर हो पाता है, वो वर्ड्स का लिटरल मीनिंग नहीं ले रहा है. अब पॉइंट समझ आ गया होगा आपको? चालू है? हाँ हाँ मोहम्मद, आप कुछ कह रहे हैं? नो सर. ओके, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आप को जब बोलना हो तो आप हैंड रेज कीजिएगा, मोर में जाके आपको ऑप्शन मिल जाएगा, देन आई विल अलाउ यू टू स्पीक. उससे क्या है, सराउंडिंग साउंड नहीं आएगा. तो हमने देखा कि किसी भी भाषा के 5 ब्रॉड एस्पेक्ट्स होते हैं. आप में से कोई रिपीट कर सकते हैं?
क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं लैंग्वेज के? अभी मैंने बताया वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, दिस इज कॉल्ड वोकैबुलरी। स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है स्पोकन इंग्लिश या स्पोकन लैंग्वेज में सीखने के लिए। फिर उसका रूल स्ट्रक्चर यानी कि ग्रामर, और उसको बोलने का लहजा, पंक्चुएशन, एक्सेंट, और लास्ट में जो सबसे डिफिकल्ट होता है, जो लिटरल वर्ड मीनिंग से पता नहीं चलता, इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो हम लोग कंसंट्रेट करेंगे इसमें से एक मेन एस्पेक्ट पर, स्पोकन इंग्लिश पर। अब स्पोकन इंग्लिश जनरल लैंग्वेज लर्निंग से थोड़ी डिफरेंट होती है। जब हम लैंग्वेज स्कूल में सीखते हैं तो उसमें ग्रामर बुक होती है, एक्सरसाइजेज होती है, डेफिनेशंस और क्लासिफिकेशन बहुत सारी होती है, फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। स्पोकन इंग्लिश में ये सब कुछ नहीं होता। हमें रियल लाइफ सिचुएशन में प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, सधे हुए लहजे में बगैर ज्यादा रुके कैसे बोलना है, ये उसका बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेंस है जो रिक्वायर्ड होता है। तो जैसा मैंने कहा, हमें डेफिनेशंस वगैरह जो स्कूल में सीखते हैं बहुत, जो एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, रूल्स, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि टाइप्स ऑफ वर्ब्स, टाइप्स ऑफ नाउन क्या होते हैं, इन सब के ऊपर हमें इतना ध्यान नहीं देना है। ये बैकग्राउंड में ऑफ कोर्स हमें समझना चाहिए, लेकिन स्पोकन इंग्लिश की मास्टरी का बेसिक मतलब है कि हम प्रॉम्प्टली रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, और हमारा लहजा, हमारी वॉइस में कॉन्फिडेंस हो, और उसमें एलिगेंस हो, उसके अंदर पॉज वगैरह, हमें एम्फसाइज क्या करना है, रुकना कहाँ है, ये सब आना चाहिए। हाँ, कोई आवाज को कुछ करना चाह रहे हैं? आराध्य, हाँ या Sir, actually, can you please speak more loud because your voice is coming very slow. okay, okay. Thank you, Aradhya, for pointing out. I'll increase my volume. Is it better now? Okay. तो हम अब, तुम्हें पता होगा कि स्पोकन इंग्लिश पर भी इंटरनेट पर बहुत कुछ आजकल अवेलेबल है। खाली वीडियोस, ऑडियोज, बुक्स तो खैर अब आजकल पीडीएफ फॉर्म में इंटरनेट पर हैं ही, पर इसके अलावा स्पीकिंग डिक्शनरीज हैं। और तुम जो सबसे इम्पोर्टेंट तो स्पोकन इंग्लिश में काम आता है, तुम्हारे फ्रेंड्स होने चाहिए जिनसे साथ तुम प्रैक्टिस कर सको। तो इंटरनेट अब ये भी अलाउ करता है, तुम फ्रेंड्स बना सकते हो जिनसे साथ इस चीज को प्रैक्टिस कर सको। इसके लिए एप्स हैं, जैसे मुझे किसी ने बताया था, एक जोश नाम से ऐप है स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए। तो उसमें आप फ्रेंड्स वगैरह भी बना सकते हो, उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। Sir, which one app? जोश, JOSH। Sir, actually, it is a wrong information, sir. Basically, Josh app is a app for short video, like a TikTok, sir. TikTok and Moj. No. It is an app which also takes tests. Sorry, You can take test on the. sir, your voice is break between the classes. Sorry, Mohammed. Sir, your voice is breaking between the class. I think my Aradhya and all are speaking. The problem is not from my side. Volume I have raised, but if there is a discontinuity, it must be in the connection at your end. आराध्या, मेरी आवाज बीच बीच में ब्रेक कर रही है या? नो सर, नो सर, नो सर। नहीं देवेश, तुम्हारी तो ठीक आ रही है एकदम। हाँ, वॉल्यूम का ही प्रॉब्लम था, तो वो मैंने अब रेस कर लिया है। ये जो ब्रेक का प्रॉब्लम होता है बेटा, ये कनेक्शन की वजह से होता है, नेटवर्क सिग्नल की वजह से होता है। तो अब मैं हाँ ये बता रहा था कि इंटरनेट पर आजकल बहुत कुछ अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करेंगे फिर? हम 3 चीजें करेंगे इस जूम सेशन से जो चलेंगे। एक तो आपको गाइड करेंगे कि इंटरनेट पर जो कुछ अवेलेबल है या बुक्स की फॉर्म में जो अवेलेबल है,
उसमें से कौन सा सबसे अच्छा है, ताकि आपका ज़्यादा टाइम खराब ना हो और आप मिसलेड ना हो जाए। दूसरा, हम आपके साथ कुछ एक्सरसाइजेस कराएंगे जूम में, और आपको कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क भी देंगे, और फिर सबको तो हम चेक नहीं करेंगे, जो सीरियसली करेंगे होमवर्क उनको हम चेक करके फीडबैक भी देंगे। तो ये फायदा होता है अलग से एक कोचिंग या टीचिंग ग्रुप ज्वाइन करने का, जो खाली आप इंटरनेट से अपने आप नहीं कर सकते। इसके अलावा हम आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के बारे में भी बताएंगे जो ज़्यादा काम आएंगी। जैसे हम जो कुछ आपको जूम सेशन में कराएंगे या जो इंटरनेट पे मिलेगा, ये आपको 20% से ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होगी कि आप अपने लेवल पर प्रैक्टिस कितना करते हैं, और प्रैक्टिस कितनी लगन से और कंटिन्यूअसली करते हैं। अब इसके बारे में मैं कुछ सजेशंस शुरू में ही दे देता हूँ, प्रैक्टिस किस तरह से करनी है। एक तो आपको स्पोकन इंग्लिश क्योंकि सीखना है, तो जो बहुत अच्छे न्यूज़ प्रोग्राम्स हैं या सीरियल्स हैं, इवन अच्छे डिस्कसेंट्स हैं, यानी कि जो कन्वर्सेशंस होते हैं टीवी पर या इंटरनेट पर, उनको बहुत ध्यान से सुनना है। और सुनते हुए आपको नए वर्ड्स जो भी मिलते हैं उनको नोट करना है, एक डायरी बनानी है, और प्रोनाउंसिएशन पे खास तौर पर ध्यान देना है कि वर्ड्स को जो कॉम्पिटेंट स्पीकर्स हैं वो प्रोनाउंस कैसे करते हैं। और जैसे मैंने कहा, प्रोनाउंसिएशन गाइड आजकल स्पीकिंग डिक्शनरीज भी मिल जाती हैं नेट पे, तो उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं, जहाँ भी कंफ्यूजन हो हमसे भी पूछ सकते हैं। और जो सबसे मुश्किल चीज़ होती है, जो बहुत धीरे धीरे आती है, क्योंकि इंग्लिश की कुछ पिक्यूलियरिटीज़ हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे तुम्हें याद होगा, कुछ हमारे मूवीज़ में इनको इस इंग्लिश को फनी लैंग्वेज कहा गया है। वो किस लिए कहा गया है कि स्पेलिंग कुछ होती है, बोला कुछ और जाता है, स्पेलिंग्स भी वेरी करती है, एक ही वर्ड की कई स्पेलिंग्स के होते हैं, फॉर्म में आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा इंडियन लैंग्वेजेस का बोलने का स्ट्रक्चर होता है वो इंग्लिश से काफ़ी डिफरेंट है, तो उसको करेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारी मदर टंग, चाहे उर्दू हो, चाहे हिंदी हो, चाहे पंजाबी हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हिंदी में कहेंगे राम ने बॉल फेंकी, फेंकी वर्ब है, वर्ब एंड में आ रहा है। लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, राम हिट द बॉल, वर्ब बीच में आ रहा है, और जो ऑब्जेक्ट नाउन है यानी कि बॉल, वो एंड में आ रहा है। तो जो सीक्वेंसिंग होता है इसको सिंटैक्स बोलते हैं, हाउ वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर स्ट्रक्चर्ड इन सेंटेंसेस। ये इंग्लिश का बहुत अलग है। स्पोकन इंग्लिश में एक और प्रॉब्लम है, स्पोकन इंग्लिश एक अलग स्पीड से बोली जाती है। अगर तुम हिंदी बोलते हो, पंजाबी बोलते हो, तेलुगु, अगर खासतौर पे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस सुनोगे, बहुत स्पीड से बोली जाती है। इंग्लिश उतनी स्पीड से नहीं बोली जाती। प्रोनाउंसिएशन का तो ऑफकोर्स डिफरेंस होता ही है। तुमने सुना होगा बहुत से साउथ इंडियंस एम साउंड को यम बोलते हैं। ऐसे ही पंजाबी जो लोग हैं वो इंग्लिश को एक दूसरे अंदाज से प्रोनाउंस करेंगे। तो इनको हमें शिफ्ट करने में अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल इंग्लिश डिमांड्स काफ़ी हमें टाइम लग जाता है, और इसमें हमें गाइडेंस चाहिए। तो ये स्पोकन इंग्लिश की और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, इसीलिए आपको भी बहुत प्रैक्टिस करना होगा, और होपफुली हमारी गाइडेंस से आपको मदद मिलेगी। अब आप अपने लेवल पे, जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिस कैसे करोगे बहुत जो अच्छे स्पीकर्स हैं, चाहे वो न्यूज़ में है, एक अच्छे न्यूज़ प्रोग्राम, जैसे मैंने देखा है वियॉन में एक पालकी शर्मा है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश एक्सेंट से बात करती हैं। तो उनको, ऐसे लोगों को आप सुनो, तो आपको स्मार्टली बोलने में बहुत मदद मिलेगी। इसी तरह से आप कुछ सीरियल्स भी चुन लो, इवन सॉन्ग्स, लिसन टू इंग्लिश सॉन्ग्स, यू विल पिक अप हाउ एग्जैक्टली टू स्पीक इन रिदम। उसके अलावा
जैसे मैंने कहा था कीप अ डायरी, कम से कम 3 नए वर्ड्स रोज सीखो, और ना केवल उनको डायरी में लिखो बल्कि उनको हर रोज या अगले दिन यूज करने की कोशिश करो। जब तक यूज नहीं करोगे अपने स्पोकन लैंग्वेज में, तब तक वो वर्ड्स तुम्हारी वोकैबुलरी का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो दिमाग में पीछे पड़े रहेंगे। ये बहुत ध्यान से याद रखना। यूज करने की कोशिश करना जो भी नए वर्ड सीख रहे हो। पहले अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो। अपने फॉर्मल ओकेजन्स पे नए वर्ड अचानक मत यूज करो, क्योंकि गलती हो सकती है। और हमें कोई बम्बास्टिक या बहुत फ्लैम्बॉयंट लैंग्वेज, फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है बहुत शोई, ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है जैसे शशि थरूर वगैरह करते हैं, और उनका कभी कभी मजाक भी उड़ाया जाता है। सिंपल लैंग्वेज बोलनी है, लेकिन प्रिसाइज वर्ड्स यूज करने हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हाउ आर यू का हम सब ज्यादातर जवाब देते हैं आई एम वेरी फाइन या आई एम फाइन, लेकिन बी अ लिटिल मोर प्रिसाइज। फॉर एग्जांपल, इफ यू आर वेरी एक्साइटेड, वेरी हैप्पी, से आई एम थ्रिल्ड टुडे। ये ज्यादा प्रिसाइज वर्ड हो गया। आई एम एक्सिलरेटेड, ठीक है। तो ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ये बेटर यूज करने से लैंग्वेज में ब्यूटी आती है। तो ये धीरे धीरे वोकैबुलरी डेवलप होने से होगा। वरना क्या है, शुरू में तो आप हाँ सिंपल वर्ड्स, आई फील गुड, आई फील फाइन, आई एम ओके, इसी तरह से यूज कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट है शुरू में आपको फ्लुएंसी आनी चाहिए, आपको अटकना नहीं है। आप सिंपल वर्ड यूज करो, लेकिन फ्लो में बोलो। और फिर अपनी वोकैबुलरी जो आप रोज 3 नए वर्ड सीख रहे हो, उसको फिर अप्लाई करना जब सीख जाओगे, तो आप ज्यादा ब्यूटीफुल वर्ड्स, ब्यूटीफुल वोकैबुलरी, प्रिसाइज वर्ड्स, ये आपकी लैंग्वेज में अटरेंसेस में आने लगेंगे। एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, अपार्ट फ्रॉम लिसनिंग टू न्यूज, सीरियल्स एक्सेट्रा। देखो, ये एक्सरसाइज आपको बहुत काम आएगी। आप मेंटली अपने आप से इंग्लिश में बात करो। शुरू में जो कुछ भी आपके आसपास हो रहा है उसको सिंपल सेंटेंसेस में डिस्क्राइब करो, अगर आप बहुत अभी बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। सिंपल थिंग्स लाइक जैसे तुम घर से बाहर निकले, ओ दिस मैन इज सो नाइस, दिस स्काई इज सो ब्लू टुडे, आई एम फीलिंग हैप्पी। सिंपल वर्ड्स अपने आप से सेंटेंसेस बोलते रहो, अगर आप बहुत बेसिक लेवल पर स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप थोड़े से और एडवांस लेवल पे हो, सिंपल सेंटेंसेस आपको यूज करने आते हैं, तो आप जो कुछ कल न्यूज में सुना है उसको अपने आप को सुनाओ और एनालाइज करो। वहां पे आपको थोड़े कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने पड़े। और फिर थर्ड स्टेज होती है कि आप अपनी थिंकिंग इंग्लिश में शुरू करो। जो नेचुरली आप सोचते हो उसको इंग्लिश में करने की कोशिश करो। प्लानिंग, रिहर्सल करना किसी सिचुएशन के लिए, ये फिर थर्ड स्टेज हो जाएगी। तो आप अब ये एक्सरसाइज, ये सब इनको कहना चाहिए हमें स्ट्रैटेजीज फॉर इम्प्रूविंग योर स्पोकन इंग्लिश। अब समझ गए होंगे। अब कुछ बुक्स के नाम मैं बता देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे हो इंग्लिश सीखने में, तो रेनन मार्टिन बहुत ही यूजफुल बुक है। ये केवल ग्रामर की बुक नहीं है, इसमें कॉम्पोजिशन यानी कि फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस एंड पैराज एक्सेट्रा, समरीज, लेटर राइटिंग एक्सेट्रा, सब कुछ मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी किताब है, रेन एंड मार्टिन। ये 35 की लिखी हुई किताब है और अभी तक बहुत यूज की जाती है स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखने के लिए। जो लोग सिंपल लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैंने सुना है कि रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स काफी पॉपुलर है। अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो बहुत सारे वीडियोस हैं, पर मैंने थोड़े से देखे तो मुझे बहुत खुशी नहीं हुई। पर एक प्रोफेसर सुमिता रॉय हैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी की, उन्होंने बहुत अच्छे वीडियोस बनाए हैं। उनके वीडियोस देखने की कोशिश करो। ऐप के बारे में मैंने तुम्हें बताया ही है। और न्यूज़ प्रोग्राम्स कुछ सेलेक्ट कर लो, कम से कम 1 घंटा जरूर इंग्लिश में न्यूज़ सुनो, इंग्लिश की कमेंट्री सुनो, और फिर उसको साथ साथ खुद
रिपीट जरूर करो, जितना रिपीट करोगे न्यू वर्ड्स दैट यू हैव लर्न, speaking back the same sentences that you found nice to yourself repeatedly, जितना रिपीट करोगे उतना जल्दी तुम्हारा पिकअप फास्ट होगा। अब स्पोकन इंग्लिश के भी कई फैसेट्स हैं, यानी कि कई उसके साइड्स हैं। हम 4-5 टीचर्स तुम्हें पढ़ाएंगे, वंस अ वीक या ट्वाइस अ वीक आया करेंगे, और सबका डे फिक्स्ड होगा, पर कभी कभी सब्स्टिट्यूट करेंगे एक दूसरे के लिए। तो कोई ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करेगा, कोई प्रोनाउंसिएशन पे करेगा, मैं सिंटैक्स और कॉमन एरर्स पर ज़्यादा फोकस करूँगा। और हम लोग हर सेशन को, क्लास को ना ब्रॉडली 6 उसके स्टेजेस होंगे। सबसे पहले हम डिस्कस किया करेंगे कि पिछली क्लास में क्या किया था, और जो तुमने कुछ अगर होमवर्क का असाइनमेंट हमको व्हाट्सएप पर ही वापस भेजा है ठीक करके, तो उसके अंदर हमने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट किए, कुछ करेक्शंस अगर बतानी है उनको बताएंगे, किसी ने अच्छा किया उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम आएंगे कुछ नया टॉपिक जो हम उस दिन करने जा रहे हैं उसके कंसेप्ट और डेफिनेशंस पर। उसके बाद फिर हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, जैसे तुमको किसी टॉपिक पे स्पीच करने के लिए बोलेंगे, या कुछ सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए बोल सकते हैं, या करेक्ट करने के लिए, इस तरह की एक्सरसाइजेस करेंगे। फिर उन एक्सरसाइजेस से हमने ब्रॉडली क्या इंपॉर्टेंट चीजें नोट की उनको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम अगले दिन के लिए थोड़ा सा असाइनमेंट देंगे, और कुछ स्पेशल अगर रेफरेंस मटेरियल बताना है वो बता देंगे। अब मेरा फोकस खासतौर पे, जैसे मैंने कहा, सिंटैक्स और एरर्स पर रहेगा। अगर हमारा ये प्रोग्राम अच्छा चला, यानी कि अटेंडेंस अच्छी रही, करीब 15 लोग एवरेज अटेंड करते रहे और उनमें से कुछ लोग रेगुलर हुए, तो हम फिर इसको आगे भी डेवलप कर सकते हैं। स्पोकन इंग्लिश के अलावा और सॉफ्ट स्किल्स हैं जो सीखने वाली हैं, जो लाइफ में बहुत काम आती हैं, जो हमारे अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम में अभी तक ज़्यादा उन पे अटेंशन नहीं दी जाती थी, लेकिन वो लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे एटिकेट है, जैसे सेंस ऑफ ह्यूमर है। अब मैं तो उसमें बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन वील कॉल सम एक्सपर्ट। अगर आप लोग रेगुलर रहेंगे, अच्छे से रिजल्ट्स दिखाएंगे, तो हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। और हम डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं, अगर हमें लगेगा कि 10 जने भी रोज नहीं जुड़ रहे हैं, तो हम इस प्रोग्राम को हो सकता है डिसकंटिन्यू कर दें। ये टोटली फ्री प्रोग्राम है, बल्कि हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे अगर बहुत अच्छा कोई परफॉर्म करेगा तो। अब हम लोग, जैसे मैंने कहा था, रोज कुछ एक्सरसाइज किया करेंगे, तो आज की हम छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। मैं तुमको 2-3 सेंटेंसेस हिंदी में पढ़ के बोलूंगा, और मैं नाम लूंगा, आप उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताइए। अभी हम लोग 10 जने हैं इस समय, तो सर हाँ आराध्य। Sir, as you said that we can use some apps for हाँ improving our speaking skills. Sir, so one time I used a app called Omegle. So it's a basically it's a video calling app where we can connect from people from yes, different that's very good. countries. Please or tell the name again. Omegle, OMEGLE. ओके, ये सब लोग नोट कर सकते हैं। मैंने ज़्यादा ऐप्स देखे नहीं है, हमने एक्चुअली इंग्लिश बिल्कुल अलग तरीके से सीखी थी, और उस समय तो ये सब टूल्स होते भी नहीं थे। Yes, sir. लेकिन हम लोग Yes, sir. सीखते थे, क्योंकि इंग्लिश As मीडियम you में said थे, that, तो हम लोग टीचर yes, sir. को Actually, सुनते हुए सीखते थे। तो अब ये yes. टूल्स आ गए हैं, और जो लोग इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं उनको ज़्यादा स्ट्रैटेजिक तरीके से सिखाई जा सकती है। उसके लिए ये हम लोग ग्रुप बनाया है। तो अब Yes, मैं sir. Sir, as आपको you said कुछ that, आराध्य प्लीज वेट। sir. अब मैं आपको कुछ Okay, sir.
हिंदी के सेंटेंसेस एक एक करके बोलूंगा, आप उनको ट्रांसलेट करके कोशिश कीजिए इंग्लिश में, उससे हमें आइडिया भी हो जाएगा कि आप अभी किस लेवल पर हैं। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, अभी ये टाइम रन आउट होने वाला है, इसलिए हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी 10 मिनट है हमारे पास, तो हम ये जल्दी से कर लेते हैं। एक सेंटेंस है जैसे, आराध्य तुम कोशिश करो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। हालांकि मेरा Yes, जन्म sir. एक साधारण परिवार में हुआ और मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा, पर अंग्रेजी सीखकर मैं एक कामयाब मैनेजर बनना Sir, चाहता हूँ। sir, can you please repeat it again? I'll repeat again. हालांकि मेरा जन्म एक साधारण परिवार में हुआ और मैं हिंदी माध्यम से पढ़ा, पर अब अंग्रेजी सीखकर मैं जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता हूँ। अब ये मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, नॉट अ सिंपल सेंटेंस, इट इज अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो So can I think for a while? हाँ हाँ ठीक है। Okay, thank you, sir. जितने मोहम्मद रफी, आप सुन रहे हो? आप अनम्यूट कर लो। So एक yes, और sir. Can I सेंटेंस speak? मैं एक सेकंड आराध्य और सोच लो, मैं एक सेंटेंस और दे देता हूँ। कौन ट्राई करना चाहेगा? मोहम्मद रफी आप सुन रहे हैं? Sir, I want to try. ओके, यू आर मोहम्मद Avis. अवेश। ओके चलो, Yes, sir. आप ये ट्राई करना। भारत न केवल विश्व की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है, बल्कि सबसे सहिष्णु और विविधताओं से भी Since I भरी was है। born in a middle class, in a poor family, but and I was आराध्य एक I आपकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लो। मोहम्मद मैं दोबारा बोल रहा हूँ, Yes, sir. मैं थोड़ी सी उर्दू मिलाने की कोशिश करूंगा। भारत Sir, न sir, I केवल didn't know दुनिया Urdu. की सबसे पुरानी तहजीब है जो जीवित है, पर सबसे सहनशील और विविधता को उर्दू में क्या कहेंगे? Sir, unfortunately, I didn't know Urdu. अच्छा ठीक है, फिर तो आप हिंदी तो जानते हो ना? Yes, sir, I'm comfortable in English. In Hindi, sorry. हाँ ठीक है, तो मैं हिंदी में बोलता हूँ। भारत न केवल विश्व की सबसे पुरानी जीवित सभ्यता है, बल्कि सबसे सहिष्णु और विविधताओं से भी भरी है। इसको इंग्लिश में बताओ। Yes, तुम sir. सोच लो, India मैं is one of जितने the oldest पहले civilization. वेट, तुम जितने उसको रिफाइन कर लो, पहले हम आराध्य से सुन लेते हैं। आराध्य बताओ। yes, sir. Sir, though I was born in a poor family and I went to a Hindi medium school, but after learning English, I become a successful person. इसमें मैं वेरी गुड, छोटा सा एक एरर है। आई तुमने कहा आई बिकेम नहीं, हमने कहा था आगे बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम, अच्छा, है ना, फ्यूचर ओके टेंस। सर, हाँ ओके सर, मुझे सुनने में प्रॉब्लम हुआ तो। हाँ, और एक और छोटा सा एरर था, तुमने कहा गरीब परिवार में पैदा, हमने कहा था साधारण। साधारण को क्या कहेंगे इंग्लिश में? ऑर्डिनरी। सिंपल ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी, हाँ सर, ओके, सॉरी सर, यस। मैंने ये मोहम्मद, लिखा था। नाउ यू ट्राई प्लीज। Yes, sir. India is one of the oldest civilization in the world. As we can say that it is the world of creativity, and there are, sir, India is one of the oldest civilization and is the full of creativity. ये सहिष्णु, सहिष्णु मतलब सहनशीलता बहुत है यहाँ, सब लोगों को यहाँ शरण मिली, किसी के ऊपर कोई धर्म थोपा नहीं गया। इसको बोलते हैं सहिष्णु। सहिष्णु को इंग्लिश में क्या कहेंगे? टॉलरेंट। Tolerant. ओके,
इट्स वन ऑफ द मोस्ट टॉलरेंट एंड डाइवर्स, विविधताओं से भरी डाइवर्स कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड। Diverse हाँ, cultures of विविधता, the world. विविध, Okay, sir. विविध को बोलते हैं डाइवर्स, जिसमें बहुत सारे Yes, sir. रिलीजन्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारे ट्राइबल्स भी हैं, अर्बन विलेजेस, हर तरीके की कम्युनिटीज हैं, और ज्यादातर आमतौर पर सब आपस में मिलके देश चला रहे हैं। कभी कभी हाँ वायलेंस होता है, वो बहुत दुख की बात है, पर मोटे तौर पर हम लोग, इतना बड़ा देश अच्छे से चल रहा है, Yes, अफगानिस्तान sir. की तरह नहीं। अब Yes, लेकिन sir. तुमने एक, हाँ, जो खाली तुमने लैंग्वेज की तो गलती नहीं है, लेकिन तुमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस कर दिया। जो हमने कहा था, इंडिया इज नॉट वन ऑफ द ओल्डेस्ट, इंडिया इज द ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन, Yes, sir. है ना? तो ये तो बहुत गर्व की बात है, इसको क्यों तुमने गलत बोला? ये Yes, sir. दुनिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट नहीं है, ये ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन है। Yes, इससे sir. वैसे पुरानी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, लेकिन उससे पहले इजिप्ट में और इराक में सिविलाइजेशन आ गई, पर वो सिविलाइजेशन फिर खत्म हो गई। हमारी Yes, sir. सिविलाइजेशन लगातार चल रही है, इसलिए इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग सिविलाइजेशन, नॉट वन Yes, ऑफ sir. द ओल्डेस्ट। ओके, Yes, sir. अब अच्छा, अब मैं एक ना किसी, तुम पार्टी में जाते हो, किसी गैदरिंग में जाते हो, वहां पे कभी कभी किसी से बात करना चाहते हो, तो कैसे बात करोगे जिससे तुम पहले नहीं मिले हो? तो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ हिंदी में, फिर उसको आपको इंग्लिश में करना है, क्योंकि ये लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस सबसे ज्यादा काम आते हैं। समझो आप किसी से बात करना चाहते हो, उससे मिले नहीं हो पहले, तो उसको हम हिंदी में कहेंगे, क्षमा कीजिए, हम शायद पहले मिले नहीं है, पर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? ओके, अब इसको इंग्लिश में कहना है, कौन बोलेगा? महक, आप बोलोगे? महक, आप हमारी आवाज सुन रहे हो? प्रवेश, आप बोलना चाहोगे? Sir, will you please repeat? मैं रिपीट करता हूँ सेंटेंस, तुम ट्राई करो। हमें किसी से जाके ये कहना है, क्षमा कीजिए, शायद हम पहले मिले नहीं है, पर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? सर ये कहेंगे, पार्डन मी, कैन आई नो योर नेम? हाँ, और एक बीच में आपने छोड़ दिया, वी हैव नॉट मेट बिफोर, हम पहले मिले तो नहीं है, पर क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तुमने सही कहा, पार्डन मी, सॉरी नहीं बोलेंगे यहाँ, पार्डन मी या एक्सक्यूज मी बोलेंगे। एक्सक्यूज मी, वी हैव नॉट मेट बिफोर, बट कैन आई प्लीज नो योर नेम? ठीक है, और मे आई प्लीज, कैन की जगह, सॉरी मैंने कैन गलत बोला, हमेशा मे वर्ड यूज करना है। मे आई कम इन, नॉट कैन आई कम इन। कैन आई कम इन का मतलब होता है कि मेरे पैर हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स तुम्हारे पैर है तो आ सकते हो, लेकिन परमिशन ले रहे हो तो मे आई पूछेंगे, मे आई कम इन, मे आई प्लीज आस्क योर नेम, और मे आई नो योर नेम? ओके जी, ओके सर। Sir, instead of saying may I know your name, we can also say that, excuse me, may I since we are not met before, can I may I know your good name? हाँ हाँ, गुड, अच्छा है। मे आई नो योर गुड नेम, और भी पोलाइट है, और भी बेटर है, वेरी गुड। तो अब ये सेशन खत्म होने वाला है, इसलिए अब मैं अगला तुमको असाइनमेंट व्हाट्सएप पे भेजूंगा, और कुछ मैं तुम्हें ऐसे सेंटेंसेस भेजूंगा जिनमें एरर्स है, उसको तुम्हें ठीक करके मुझे वापस भेजना होगा, ठीक है? और कल का सेशन हमने एक जूम पर रखा था भारत जी के साथ, लेकिन भारत की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो कैंसिल हो गया है सुबह वाला। और परसों फिर आपको अनुराधा मैम शायद क्लास लेंगी, वही 8:30 बजे।
ठीक है, आप लोग कुछ अगर कमेंट करना चाहो, कुछ पूछना चाहो तो लास्ट 2 मिनट्स आप पूछ सकते हो। 1 ही मिनट रह गया हमारे पास।